Namaskar bachcho. I hope you all are well. So student, today we are going to start the next topic, that is the topic in HTML tags, elements and their attributes. Now students, आपको तो पता ही है we have started HTML language. You know बच्चों, in every language there are some commands, and through that commands we are writing the code for that particular language. Okay, we can also say that through that particular language we are writing the statement of that particular language. So to write the code in HTML, we strictly require HTML codes, and the HTML codes are specially known as tags. तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये टैग्स क्या होते हैं. सिंपली टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ वेब पेज. टैग्स क्या होते हैं बच्चों? किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए जो बेसिक कमांड्स होते हैं, दे आर नोन एज टैग्स. एवरी टैग इज मेड बाय थ्री थिंग्स. फर्स्ट, their name, that is called tag name. Second, their attribute, means property of that tag. And third, the value of that particular attribute. Okay, always remember, whenever we want to show any tag in HTML, we must need to enclose it in pair of quotation, pair of angle bracket like this. The starting angle bracket, angle bracket, and then tag name in between, like I'm writing here. You just see. देखिए, एंगल ब्रैकेट HTML एंगल ब्रैकेट क्लोज. तो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द tag opening. Now if you want to close this tag, then just mark / then HTML. Okay, so we can say that this is the opening of a tag and this is the closing of a tag. Okay, in HTML there are two kind of tag. One is container tag या container element tag, and second is empty tag. Now question, what is the difference between container element and empty element? Student, container tag are those tag, container tag या container element tag are those tag which contain some value and we need to close them, just like HTML tag. Students, in HTML tag we need to open and close it as well. ठीक है, but there are some tag that do remember, we need to open and we need to close this container tag, as well as they contain some value like head tag, body tag, even title tag. ऑल आर द एलिमेंट. आपने देखा बच्चों, HTML की ओपनिंग और HTML की क्लोजिंग, उसके बीच में हमने अदर टैग्स को कंटेन कराया है. तो वी कैन से दैट जिन टैग्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बीच में कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेनर टैग. ठीक है, कंटेनर टैग के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इन्हें ओपन और क्लोज दोनों करना कंपलसरी है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे दैट एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग बच्चों आर दोज टैग जिनको सिर्फ ओपन किया जाता है, क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे BR टैग. बच्चों BR जो टैग है आपका सिर्फ वो ओपन ही होता है, जो कि लाइन ब्रेक करने के काम आता है. इसको सिर्फ आप ओपन करते हैं, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और टैग होता है HR टैग. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंटेनर एंड एम्प्टी? कंटेनर टैग के बारे में दो बातें बोलते हैं फिर से. कंटेनर टैग में ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग भी होती है टैग की, एंड सेकेंड, इन बिटवीन दे कंटेन सम वैल्यू. नेक्स्ट, इन एम्प्टी टैग there is no need to close that particular tag
and they do not contain any value in between. Okay, now this is empty and container tag. In HTML there are two kind of tags, as I told you. Now next, attribute. What are the attribute? बच्चा every most of the जो हमारे tags होते हैं, they are containing some property associated with them, and every property of the tag is known as the attribute. Okay, you can also say that every attribute is the part of tag which defines the property of that particular tag. Okay, if I'm talking about the attribute, I'm just giving an example. I'm writing here body tag. Okay, as I already told you that body is a container tag, so I need to close it as well. Now body tag have some property, or can say that attribute. So do remember, जितने भी टैग्स के एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी होते हैं वो उसके ओपनिंग पेयर के साथ में लिखे जाते हैं. और कैसे लिखे जाते हैं, गौर से देखिए. सबसे पहले लिखा जाएगा एट्रीब्यूट का नेम, जैसे बॉडी का BG COLOR BG कलर प्रॉपर्टी. ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉडी टैग. Okay, this is the body tag. Okay, and BG color is the property of body tag. Okay, so this property is used to set the background color of the web page. So body का BG color क्या हुआ बच्चों? उसकी प्रॉपर्टी. जैसे मैंने आपको बोला, आपकी जो बुक है वो बहुत ही सुंदर प्रिंट हो रखी है, तो बहुत ही सुंदर होना क्या है? बुक की प्रॉपर्टी. ठीक है, एडजेक्टिव. उसी तरह से BG कलर क्या है? बैकग्राउंड कलर ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ वेब पेज. तो बॉडी टैग की जो प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, दैट इज BG कलर. और BG कलर इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है रेड. तो ये रेड क्या है? उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू. ओके, आई एम रिपीटिंग, बॉडी इज द टैग, BG color is the attribute, or can say that the property of tag, and equals लगा के उसकी value. Okay, if you want to show more than attribute of a single tag, like body tag का ही एक और प्रॉपर्टी होती है text property, जो उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करती है. तो उसके लिए टेक्स्ट ये लो. ठीक है, टेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट इज इक्वल टू येलो इज दियर प्रॉपर्टी. तो इससे होगा क्या? बॉडी टैग जो है, बॉडी पार्ट जो है HTML वेब पेज का, उसमें बैकग्राउंड कलर आपका रेड हो जाएगा और जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो जाएगा. इस तरह से आप एट्रीब्यूट सेट करते हैं. एक बात आप नोटिस करिए बच्चों, बॉडी टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बॉडी के ओपनिंग टैग के साथ लिखे जाते हैं, कभी भी क्लोजिंग वाले पार्ट पे नहीं लिखे जाते हैं. ठीक है, बॉडी के किसी भी टैग की जो प्रॉपर्टी है वो उसके ओपनिंग टैग के साथ लिखी जाती है. ओके बच्चों, नाउ HTML राइटिंग रूल. नाउ HTML कोड को लिखने के कुछ रूल्स है बच्चों. देखिए, टैग एंड एट्रीब्यूट नेम नॉट केस सेंसिटिव. आप कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों. ठीक है, यानी कैपिटल भी लिख सकते हैं कोड को, स्मॉल भी लिख सकते हैं. कंटेनर टैग हमेशा क्लोज करेंगे आप, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. वैल्यू गिवन द एट्रीब्यूट शुड बी एनक्लोज्ड विद इन द कोटेशन, स्पेशली इफ द वैल्यू इज एनी ब्लैंक स्पेस. जब भी आप कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखेंगे, इट शुड बी प्लेस्ड इन डबल कोटेशन. जैसे आपने देखा था, मैंने अभी अभी आपको कोड दिखाया था. ये देखिए, यहाँ पे जैसे BG कलर एट्रीब्यूट की वैल्यू है, दैट इज रेड, तो उसको मैंने डबल कोटेशन में डाला है. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट, एट्रीब्यूट वैल्यू कैन बी केस सेंसिटिव. किसी भी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव हो सकती है. व्हेन द टैग आर एम्बेडेड, कई बार बच्चों हम लोग एक टैग के अंदर ही दूसरा टैग लिखते हैं. ऐसी सिचुएशन में
जब भी हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखते हैं, ऐसी सिचुएशन में जो टैग बाद में आया है वो सबसे पहले क्लोज होगा। लेट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। जैसे गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दो टैग यूज़ करे हैं बच्चों। देखिए, एक मैंने यूज़ करा है HTML और एक मैंने करा है बॉडी यूज़। तो गौर से देखा बच्चों, सबसे पहले मैंने HTML लिखा, फिर मैंने बॉडी लिखा। अब आती है, चूंकि ये दोनों ही टैग्स पेयर टैग है तो ऑब्वियसली क्लोज भी होंगे। तो देखिए, जो सबसे बाद में ओपन हुआ है ना वो सबसे पहले क्लोज होगा, फिर उसके पहले वाला वो क्लोज होगा। ओके, तो कहने का मतलब है जो सबसे बाद में ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज होगा, जो सबसे बाद में जो सबसे पहले ओपन हुआ था वो सबसे बाद में क्लोज होगा। इस पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके टैग्स ओपन एंड क्लोज होंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। टैग के नेम में कभी भी आप स्पेस नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंड। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉडी, तो आप बॉडी को इस तरह से नहीं लिख सकते कि थोड़ा थोड़ा स्पेस दे के आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। एंड देयर शुड नो ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन द एंगल ब्रैकेट एज वेल। आपके जो टैग हम लिखते हैं ना उसमें यहाँ पर भी एंगल ब्रैकेट के बाद में और एंगल ब्रैकेट के पहले स्पेस, ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों, these are certain writing rule of HTML code. You must do remember them, and from tomorrow next class we are just going to start to write our code. Thank you, have a nice day.